Assalamu alaikum everyone. Let's continue May June 2021 variance 115070. Before I'm going to start the question, okay. The student has to measure 28.2 cm cube of aqueous sodium bromide. Which piece of apparatus should be used? Should the student be select? आप जानते हैं 28.2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो D से भी डिटरमिन किया जा सकता है, B से भी डिटरमिन किया जा सकता है, ऑलराइट, क्योंकि इन दोनों पे ग्रेजुएशन मार्क है। क्योंकि B का इंटरनल डायमीटर स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू मेजरिंग सिलेंडर, व्हिच इज व्हाई B से मेजर होने वाला 28.2 cm क्यूब वॉल्यूम ज्यादा एक्यूरेट होगा, and therefore B is going to be the right answer. Next question, which property of a liquid ester can be used to check its purity before use as a food flavoring? In order to check the purity, we need to check the boiling point. If a compound boil at a fixed temperature, then it means it is pure. If a compound is impure, it boils over a range of temperature. That's what we have done in the class. So as per that statement, A is going to be the right answer. Which sequence of procedures is used to separate a pure dry sample of hydrated copper to sulfate from a mixture containing hydrated copper to sulfate and calcium carbonate? आप जानते हैं कि कॉपर टू सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ऑलराइट। सो आप जानते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल है और आप ये भी जानते हैं कि ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो सबसे पहले मैं इस मिक्सचर को वाटर में प्लेस करूंगा ताकि ये डिसॉल्व हो जाए, इसका फिल्ट्रेट मिल जाए, ये इनसॉल्युबल होता है, इसका रेजिड्यू मिल जाए, राइट। तो ये मुझे क्या मिलेगा बेटा, फिल्ट्रेट, और ये मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, रेजिड्यू की फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहला मेथड वाटर में डिसॉल्व करूंगा मैं, या तो आंसर ए हो सकता है या आंसर बी हो सकता है, क्योंकि हम सबसे पहले वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक सॉल्युबल है, एक इनसॉल्युबल है, तो मैं उसके बाद फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करूंगा। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आपके पास ऑप्शन बी में है, और जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो रेजिड्यू तो कलेक्ट हो जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर, जो फिल्ट्रेट है उसको मैं क्रिस्टलाइजेशन करूंगा तो मुझे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, एंड व्हिच इज व्हाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Question number 4, J is an aqueous solution. On addition of aqueous sodium hydroxide to J, green precipitate is formed. अब ये जो green precipitates हैं ये Fe2 plus ions के भी हो सकते हैं, ये green precipitate chromium 3 plus ions के भी हो सकते हैं। The resulting mixture is heated and no gas is given off. इसका मतलब ammonium ions absent, ठीक है। When you add NaOH and heat the mixture and no gas is given off, then it means ammonium ions absent. Aluminum foil is added to the warm mixture. A gas is formed that turns damp red litmus paper blue. This entire statement confirms that nitrate ions is present, because ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो nitrate ions का है। तो nitrate ions present, ammonium ions absent, and green precipitate is basically iron 2 plus और chromium 3 plus। बट आप जानते हैं कि chromium 3 plus एक्सेस NaOH में डिसॉल्व होकर ग्रीन सॉल्यूशन देता है, आयरन 2 plus डिसॉल्व नहीं होता, उसके ग्रीन प्रेसिपिटेट्स ही रहते हैं। सो इट माइट बी Fe2 plus, राइट। तो आपके पास आंसर इज Fe2 plus and nitrate ions. The right answer is going to be D. ठीक है जी। क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है, dissolves in NaOH
to give green solution. Next, question number 5. Gas X has the following properties. Colorless होती है, no effect on either damp or red or blue litmus paper. ना इसका मतलब it is a neutral gas. So it can be hydrogen, it can be oxygen, because both of them are colorless. No effect of lime water. इसका मतलब carbon dioxide is not there. Flammable है, इसका मतलब hydrogen gas. The right answer is going to be C, because hydrogen is flammable gas. That's a very simple question. Which particle contain most electrons? इसका atomic number 8 है, तो इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 3 माइनस का मतलब इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसका एटॉमिक नंबर 11 है, माइनस चार्ज की वजह से इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. और इसका एटॉमिक नंबर 12 है, 3 प्लस चार्ज की वजह से इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सी में है, which is why C is going to be the right answer. Question number 7. The diagram shows the structure of two solids P and Q. ये P है, which shows the diamond. ठीक है. और Q जो है वो आपका graphite है, because layer structure है, and these layers are joined together by van der Waals forces. Right? Which row is correct? Has covalent bonding. P और Q दोनों में covalent bonding होती है. तो या तो आंसर C है या फिर आंसर D है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट के अंदर होती है, because of the presence of free mobile electron. So only Q. The right answer is D. What is covalent bond? A pair of electrons shared by two non-metallic elements. That might be the right answer, because non-metals जब आपस में combined होते हैं through sharing of electron तो covalent bond बनता है. So A is going to be the right answer. Obviously बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं. Electrons being shared by a lattice of positively charged ion. नहीं जी, जब positively charged ion होते हैं तो C of electron होता है, sharing of electron नहीं होती. गलत हो जाएगा ये, क्योंकि मेटल की डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रहा. एलिमेंट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ नोबल गैस स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है. एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस. ये भी गलत. ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर. दैट्स राइट, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द कोवेलेंट बॉन्ड. The empirical formula of compound XCH2 and its relative molecular mass is 70. What is the molecular formula of X? That's easy. अगर empirical formula CH2 है तो मैं कर लूंगा CH2 taken n equals to 70. CH2 का empirical formula mass हो जाएगा 14, n equals to 70. then यहाँ से हो जाएगा 70 divided by 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5. तो ये CH2 taken n की जगह 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा C5H10. So this is my molecular formula. C5H10 is C, तो C is going to be the right answer. फिर वो आपसे कह रहे हैं, chemist wants to make calcium nitrate. They start with 8 gram pure calcium oxide and an excess of dilute nitric acid. It produces 12.6 gram of pure dry anhydrous calcium nitrate crystals. What is the percentage yield of calcium nitrate? सबसे पहली बात कि ये आपके पास practical yield है, इसको आप actual yield भी कह सकते हैं. And by using this value, we need to find the theoretical yield. Theoretical yield. We need to find out the theoretical yield by using 8 gram of pure calcium oxide. Relative atomic masses is given in the question of each element. First of all, हम सबसे पहले तो equation बना लेते हैं बेटा. यहाँ पर ये मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और मैं इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा. ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट में.
और वाटर में, ठीक है। दूसरी बात, MR ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मेरे पास 56 है, ये भी पता होनी चाहिए बात। सिमिलरली MR ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट मेरे पास है, तो मुझे कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा मेरे पास 164, राइट। अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मुझे 8 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिटरमिन कर लूं। तो मैं 8 को डिवाइड कर देता हूँ बेटा 56 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे, और यहाँ से मोल्स आएंगे मेरे पास 0.1428, ठीक है। आप जानते हैं जो मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के एग्जैक्टली वही मोल्स कैल्शियम नाइट्रेट के, बिकॉज 1:1 का रेशियो है। तो मैं मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट डिटरमिन कर सकता हूँ। तो मैं मोल्स जो आपने डिटरमिन किए हैं 0.1428, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 164 से, तो मेरे पास मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आ जाएगा विच इज 23.42 ग्राम, ठीक है। मुझे परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है, तो परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड कितनी दी हुई है 12.65, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा बेटा थ्योरेटिकल यील्ड से, जो कि मैंने कितनी कैलकुलेट की अभी आपके साथ मिलके 23.42 इंटू 100, तो यहां से मेरे पास आंसर कितना आएगा 54%। The right answer is A. I hope it makes sense to you. Question number 11, Alatrana. Relative formula masses of 4 compounds are given. Okay. A student has 1 gram sample of each compound. Which sample contain highest number of moles of oxygen atom? Okay. Okay. अच्छा, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये बात समझिएगा जरा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं फिर उसको शॉर्टकट के तौर पर अप्लाई कर लूँ। अगर मैं कॉम्पोजिशन देखूं तो मुझे पता चलेगा कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सिमिलरली अगर मैं H2SO4 की बात करूं, तो आप जानते हैं उस H2SO4 में मेरे पास 4 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन तो है मेरे पास लेकिन 1:4 का रेशियो है, राइट। तो जो फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, मैं उनको मोलर रेशियो में इन्वॉल्व कर लूंगा डायरेक्टली। सो मैं करूंगा क्या, मैं करूंगा ये शॉर्टकट लगा रहा हूँ, मैं 1 को डिवाइड करूंगा बेटा 102 से, तो मेरे पास मोल्स आएंगे। अब जाहिर सी बात है जो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उसको 3 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 102 टाइम्स 3, इट्स गोइंग टू बी 0.0294, सही है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली मैं यहां पर यूज करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 1, और 1 से इसलिए क्योंकि सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है कॉपर ऑक्साइड में, तो 1 डिवाइडेड बाय 80 इज गोइंग टू बी 0.0125 moles of oxygen atom। फिर है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 98, तो मोल्स आए, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, बिकॉज 4 ऑक्सीजन एटम है आपके पास H2SO4 में, तो 1 को मैं डिवाइड करूंगा बेटा 98 से, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 98, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो ये हो जाएगा 0.0408 moles of oxygen atom। Last but not the least,
मैं 1 को डिवाइड कर दूंगा बेटा 63 से, मोल्स मिल गए, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा बिकॉज फॉर्मूले में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 divided by 63 into 3 is going to be 0.0476 moles of oxygen atom. तो सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके पास कहाँ है बेटा? डी में आए हैं, इसका मतलब डी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर. Question number 12. How many elements combine to form the compound ammonium sulfate? अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लीजिए. अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 taking 2SO4. दिस इज अमोनियम सल्फेट. अब देखिए इसमें एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और ऑक्सीजन है. तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 4 एलिमेंट्स हो गए जिनकी वजह से ये कंपाउंड बनेगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. फिर उसके बाद है आपके पास an aqueous mixture of copper to sulfate, an aqueous mixture of copper to nitrate and silver nitrate is electrolyzed with pure copper electrodes. A half equation correctly describes the change occurring at the anode. At anode, oxidation takes place. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, anode is made up of copper according to the question. So when copper is oxidized, it will turn to copper ions and electrons. It will turn to copper ions and electrons. So right answer is going to be A. Okay. Question number 14. The diagram shows the electrolysis of concentrated and dilute aqueous sodium chloride using inert electrodes. Gases are produced and collected in each of the test tube W, X, Y, and Z, which is stated in that column. देखिए आपके पास concentrated sodium chloride है, right? Concentrated sodium chloride है. तो W जो है ना वो कलेक्ट करेगा बेटा ऑक्सीजन, सॉरी W जो है ना वो कलेक्ट करेगा बेटा क्लोरीन, और हाइड्रोजन जो है, और X जो है ना वो कलेक्ट करेगा बेटा हाइड्रोजन. क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है ना तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी. अच्छा, ये है डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड. तो इसमें Y कलेक्ट करेगा, अच्छा Z देख लेते हैं. ये कलेक्ट करेगा बेटा हाइड्रोजन गैस, और ये कलेक्ट करेगा बेटा ऑक्सीजन गैस, राइट. और आप जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का कलेक्शन होता है तो रेशियो क्या होता है इन दोनों के दरमियान? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मैंने क्या बताया था आपको? 2:1 का होता है. ठीक है, ये याद रखिएगा. और हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब भी कलेक्शन होता है, आप चेक कर लीजिएगा नोट्स में, इसका रेशियो होता है 1:1 का. ठीक है, पढ़ते हैं आगे. Approximately equal volume of gas are produced and collected in test tube W and X. तो W and X में equal volume of gas are produced. सही बात है, जब दोनों का मोलर रेशियो सेम है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी तो सेम होगा. तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, सही है. मोलर रेशियो इज सेम तो वॉल्यूम इज सेम, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है. As molar ratio is same, volume is also same. फिर है वो आपके पास approximately equal volume of gas are produced and collected in test tube Y and Z. Equal volume तो नहीं है, जब रेशियो डिफरेंट है तो वॉल्यूम इक्वल कैसे हो सकता है? तो आप यहाँ बता दीजिए. As ratio are different,
volume cannot be same. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। 3 डिफरेंट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही बात है। एक हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है, एक क्लोरीन गैस कलेक्ट हो रही है और एक ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है, तो 3 डिफरेंट गैसेस हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 1 and 3 इनकरेक्ट, आंसर इज डी। Which positive ions are present in aqueous copper 2 sulfate? बेटा कॉपर 2 सल्फेट में aqueous ions कौन से होते हैं? कॉपर आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, सल्फेट आयंस होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। अब पॉजिटिव आयंस कह रहे हैं तो कॉपर और हाइड्रोजन आयंस, राइट आंसर इज बी। दैट्स सो इजी। These statements refer to hydrogen and it is used as a fuel. Okay, both water and hydrocarbons can be used as a source of hydrogen. Yes. आपको शायद याद हो, मैंने हाइड्रोजन एज फ्यूल का एक टॉपिक पढ़ाया था आपको एनर्जी चेंजेस में, और मैंने आपको हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के 3 तरीके बताए थे। मैंने कहा था एक, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। दूसरा, जब मीथेन विच इज अ हाइड्रोकार्बन उसकी स्टीम रिफॉर्मिंग करोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। सही है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट ठीक है। In a fuel cell, hydrogen reacts with oxygen to generate electricity. ये बात भी बिल्कुल ठीक है। The reaction taking place in a fuel cell is a redox reaction. जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा होगा, तो redox, तो राइट आंसर इज डी। Ethanol is produced by the fermentation of glucose from sugarcane. In some countries, ethanol is used as a fuel. Which statements are correct? Sugarcane is non-renewable finite source. That's right. That's incorrect. I think 17 is incorrect. This is incorrect because sugarcane is a renewable source of energy. ठीक है, पहला statement wrong हो गया। Second देखिए, when sugarcane is growing, it removes carbon dioxide from the atmosphere. Yes, that's right. Second statement is correct. The right answer is B. Which changes will speed up a chemical reaction? प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, पार्टिकल का साइज अगर बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। द राइट आंसर इज सी बिकॉज़ थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अगर सॉलिड का साइज इंक्रीज करोगे तो इट लोअर्स द सरफेस एरिया, यहाँ लिख देते हैं लोअर्स द surface area. Next, magnesium reacts with dilute sulfuric acid. 2 experiments are carried out at 25 degrees Celsius. 24 gram of powdered magnesium is reacted with 100 cm cube of 1 mole per dm sulfuric acid. Similarly, 24 gram of powdered magnesium is reacted with 50 cm cube of 2 mole per dm sulfuric acid. During each experiment, the volume of hydrogen produced is measured. The results are plotted on the graph. Which graph is correct? सबसे पहला काम, मैं इन दोनों को यूज करके मोल्स ऑफ HCl डिटरमाइन कर लेता हूँ, मोल्स ऑफ एसिड डिटरमाइन कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 100 divided by 1000 is going to be 0.1 मोल। अच्छा, आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जो मोल्स एसिड के वही मोल्स हाइड्रोजन गैस के होंगे। बाय यूजिंग दिस मैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24,000 cm3 से, तो ये हो जाएगा 2400 cm3। यानी एक्सपेरिमेंट 1 में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज 2400 cm3। मैं सिमिलरली यहाँ से भी बेटा मोल्स ऑफ H2SO4 कैलकुलेट कर लेता हूँ इन एक्सपेरिमेंट 2।
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1000, तो बेटा मेरे पास 0.1 मोल हो जाएंगे, और मैं इसके थ्रू भी वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं 0.1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24,000 cm³ से, तो मेरे पास हो जाएगा 2400 cm³। अब आप नोट करो, यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट 1 में वॉल्यूम कितना कलेक्ट हो रहा है 2400 cm³, और यहाँ पर भी वॉल्यूम कितना कलेक्ट हो रहा है 2400 cm³। इसका मतलब इन बोथ एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इज सेम। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड डिफरेंट आ रहा है। तो कंपटीशन एग्जिबिट बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस सेम है। अब प्रॉब्लम इज स्टीपर कर्व है, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हाई है तो इसका मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी। सही है, इसका कर्व लेस स्टीपर है, लो रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑब्वियसली इसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट 2 को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, एक्सपेरिमेंट 1 को हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, उसकी कंसंट्रेशन कम। तो देखिए यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा, यहाँ कंसंट्रेशन कम, इसका मतलब ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 20, in which equations is the change is the underlying species correct? अच्छा चलिए देखें, मीथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। कार्बन तो x ले लीजिए, हाइड्रोजन +1 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -4। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए x -2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +4। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है फ्रॉम -4 टू +4। तो इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन हो रही है। सल्फर जो है H2S में सल्फर इज -2 और यहाँ 0। ठीक है, तो -2 से 0 इज ऑक्सीडेशन नॉट रिडक्शन, ये गलत हो गया। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0, तो इसका मतलब ये रिडक्शन नहीं है, ये भी ऑक्सीडेशन है, तो ये भी गलत हो गया, बिकॉज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन, यहाँ उन्होंने रिडक्शन लिखा गलत, यहाँ भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ रिडक्शन लिखा, ये भी गलत। तो राइट आंसर इज ए। 21, the Haber's process converts nitrogen and hydrogen into ammonia, which row is correct? Okay, pressure is increased, देखो यहाँ पर कितने मोल्स हैं 4, और यहाँ पर कितने मोल्स हैं 2। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, फॉरवर्ड जाएगा, जबकि यहाँ लिखा हुआ है मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब अगर मैं प्रेशर को रिड्यूस करूं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, वो कह रहे हैं नो चेंज, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि मोल्स डिफरेंट है तो नो चेंज तो नहीं हो सकता। फिर वो कह रहे हैं कैटलिस्ट प्रेजेंट मूव्स टुवर्ड्स राइट, तो जाहिर सी बात है कैटलिस्ट हैज नथिंग टू डू विद द चेंज इन इक्विलिब्रियम, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि कैटलिस्ट को इस्तेमाल करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा होता है कैटलिस्ट, व्हिच इज व्हाई 21 का आंसर डी होगा। Which row shows the pH values for 0.1 mole per dl solution of ammonia, hydrochloric acid, sodium chloride, sodium hydroxide? पहली बात, अमोनिया जो है वो वीक एल्कली है, तो जाहिर सी बात है इसकी पीएच जो है वो, इसकी रेंज होगी 9 से 11।
आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसकी पीएच की रेंज मैंने आपको 1 से 3 दी हुई है। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच 7 होगी। आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, इसकी पीएच वैल्यू आपके पास 13 से 14 की रेंज में होगी। अब चेक करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड 7 कहाँ पर है, बी सी में है और डी में है, इसका मतलब या तो सी आंसर है या डी आंसर है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 13 से 14 की रेंज में कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये करेक्ट हो गया। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच रेंज 1 से 3 है, ये रहा। अमोनिया की रेंज 9 से 11 है, ये है। राइट आंसर इज सी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द वाटर इन द लेक इज एसिडिक and fish are dying. The water in the lake needs to be neutralized. Which compound can be added in excess to neutralize the water in the lake? जाहिर सी बात है, अगर आपने एसिडिक किसी चीज को न्यूट्रलाइज करना हो तो आप एल्कली को ऐड करते हो, एल्कलाइन सॉल्यूशन को आप ऐड करते हो। सही है, राइट आंसर इज ए। सोडियम नाइट्रेट जो है वो सॉल्ट है, ठीक है, हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल नहीं होता। एल्कली क्रोसिव होता है, तो फिश की डेथ होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए यूज नहीं करेंगे। एसिड भी क्रोसिव होता है, इसलिए यूज नहीं करेंगे, वरना फिशेस की डेथ होना शुरू हो जाएगी। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। करेक्ट आंसर इज ए। आप बता दीजिए ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्रोसिव। Fishes will die. ठीक है, 24. Two incomplete statements about the preparation of an insoluble salt are given. Preparation of an insoluble salt are given. One can be used to prepare insoluble salt such as this. The salt is collected by this and it is then this, which would correctly complete gaps 1 to 4. Okay. एक insoluble salt को prepare करने के लिए हमें दो soluble salts चाहिए, ठीक है, ये बात हमने आपको पढ़ाई है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि precipitation can be used to prepare insoluble salts. तो 1 की जगह आप क्या लेकर आएंगे, precipitation। insoluble salt को प्रिपेयर करने के लिए हम precipitation मेथड यूज करते हैं। तो precipitation यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, बिल्कुल सही बात है। और जाहिर सी बात है आपने precipitation insoluble salt की कोई एग्जांपल देनी है, सच एज दिस। तो नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, ये गलत हो गया। बेरियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल होता है, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर या तो ये होगा या ये, क्योंकि दोनों के दोनों लेड सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। सही है, लेड सल्फेट इज इनसॉल्युबल। ये स्टेटमेंट आ गया आपका। आगे चलते हैं। द सॉल्ट इज कलेक्टेड बाय दिस एंड इट इज देन दिस। तो सॉल्ट को कलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्सचर को आपने फिल्टर करना होगा, ठीक है, क्योंकि एक सॉल्युबल होगा और एक इनसॉल्युबल होगा। फिर जब आपके पास तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेशन। सही है, फिर उसके बाद आप वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। Question 25. The Haber's process is used to make ammonia at a temperature of 400 and a pressure of 20,000 kilopascal. The temperature is changed to 500 degrees Celsius, but the pressure is kept the same. What will be the effect on this change on the production of ammonia? 400 से 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, राइट, और प्रेशर को हमने सेम रखा। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा,
ये बिल्कुल सही बात है। एंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये बात आपने पढ़ी है हमसे। एपस प्रोसेस में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो अगर आप लिखते इन एपस प्रोसेस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। The right answer is going to be A. Some properties which indicates the differences in elements are listed. Metallic character, okay. Which two properties increases across a period in the periodic table? Across the period, atomic number increases. Atomic number increase होता है। और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे। लेकिन जो पीरियड नंबर होता है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। अगर पीरियड 2 है तो सिर्फ 2 शेल्स होंगे, पीरियड 3 है तो सिर्फ 3 शेल्स होंगे। सही है। Across the period, metallic character will turn to non-metallic, metallic to non-metallic character होता है। ये चीजें सिखाई हैं हमने आपको पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में। Increases, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर तो इंक्रीज नहीं होता, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये खत्म हो गया। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, ये सही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सही है। तो 3 and 4 is the right answer. So D is going to be the right answer. 27. Element Y and X combined to form an ionic compound. इसका मतलब इसमें से एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो मेटल एंड नॉन मेटल combined together to form an ionic compound. Atom of X have more protons than atoms of Y. ठीक है। Okay. Atoms of Y has more valence electrons than atom of X. अगर इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नॉन मेटल हो गया, क्योंकि जितने नॉन मेटल्स होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ग्रुप नॉन मेटल्स होते कहाँ हैं? ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। तो अगर 7 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 है तो 6। इसके और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 क्या होते हैं? मेटल्स, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि Y जो है वो नॉन मेटल है। Y इज नॉन मेटल, तो ऑब्वियसली X क्या हो जाएगा फिर आपके पास? मेटल। ठीक है। 27। आयंस ऑफ X आर नेगेटिवली चार्ज, गलत। अगर X मेटल है तो मेटल तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्म करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखो, X एंड Y आर इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये बात तो कहीं पर भी मेंशन नहीं हुई थी, राइट। इसने हमें मोर प्रोटॉन्स बता दिए, मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता दिए, बट इन दोनों बातों से ये नहीं पता चल रहा कि वो सेम पीरियड में है या नहीं। ठीक है जी, क्योंकि सेम पीरियड के एलिमेंट का प्रोटॉन भी ज्यादा होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं। ये भी गलत। X and Y are in the same group of the periodic table, not necessarily.
एक मेटल एक नॉन मेटल है तो सेम सेम ग्रुप तो नहीं हुआ. तो राइट आंसर इज बी. Question 28. The element in group 1 of the periodic table show trends in both their reactivities and their melting points. Rubidium is in group 1 of the periodic table. Right? Which statement about rubidium is correct? Just give me a second, please. All right. So question number is basically 28. The element in group 1 of the periodic table shows trend in both their reactivities and their melting points. So reactivities and the melting points, rubidium is in group 1. Which statement about rubidium is correct? It has higher melting point than potassium. Wrong, because down the group melting point decreases. तो ये wrong हो गया. Next, it reacts with water to produce an acidic solution. Wrong. It gives alkaline solution. जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ऐसे रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. Then it reacts with water to produce oxygen gas. Wrong. Produces hydrogen gas. And obviously, right answer is D. The properties of four substances are shown. Which substance is a metal? Metal conducts electricity. That's right. When dissolved in water, but not when solid. ये गलत हो गया इसलिए क्योंकि metals do conduct electricity in solid state because of the presence of C of electron. ये statement गलत हो गया. Do conduct electricity in solid. ठीक है. It has high melting point and conducts heat when solid. Yes, it might be the right answer, but let's talk about other options. It has low melting point and it is brittle. Metals are malleable and ductile. ये statement गलत हो गया. It has giant covalent structure. Wrong. Covalent structure तो होता ही नहीं है metals का, right? Metals को तो metallic structure होता है. So right answer is obviously B. 30. Group 1 elements and transition elements are metals. Student A suggests that group 1 elements are above hydrogen in the reactivity series, but that not all transition elements are. Student Y suggests that the densities of group 1 elements are lower than those of the transition elements. बिल्कुल सही बात है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उन सबका रिलेटिव एटॉमिक मास ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट. इसका मतलब उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी. तो स्टूडेंट वाई का स्टेटमेंट किसी हद तक करेक्ट है. व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है. Student X suggests that the group 1 elements are above hydrogen in the metal reactivity series. बिल्कुल सही बात है. ग्रुप 1 सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं और रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से ऊपर है. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. बट दैट नॉट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर. लेकिन कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं जस्ट लाइक आयरन, और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कम है जस्ट लाइक कॉपर. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. राइट आंसर इज ए. फॉर दिस क्वेश्चन आपको नोट्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए. टिन इज मोर रिएक्टिव देन लेड but less reactive than iron. Which method would be most suitable for extracting tin from its ore? अगर आयरन से लेस रिएक्टिव है तो आयरन की जो एक्सट्रैक्शन है वो तो हम उसके ओर के थ्रू करते हैं, राइट? अगर वो उससे लेस रिएक्टिव है तो जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज नहीं कर सकते बिकॉज मोर रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है. सो मोर रिएक्टिव मेटल इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रोलिसिस. इसके बाद आपके पास हीटिंग अलोन. हीटिंग नहीं,
डिकम्पोजिशन से तो नहीं मिलता कभी भी, डिकम्पोजिशन वोंट गिव metal. Heating with carbon, this might be the right answer. Reacting with hydrogen, नहीं जी, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से नहीं वो होगा, तो राइट आंसर इज सी, अटैच। एक्चुअली हाइड्रोजन जो है वो ऑक्साइड्स यूजुअली होते हैं, ये याद रखिएगा, ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है। Attaching pieces of magnesium to underground iron pipes can protect the iron from corrosion. Which reaction protects the iron from corrosion? तो जाहिर सी बात है, अगर आपने मैग्नीशियम को अंडरग्राउंड पाइप के साथ अटैच किया है तो मैग्नीशियम आप जानते हैं इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट विल ऑक्सीडाइज। ठीक है, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो कन्वर्ट मैग्नीशियम आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑप्शन कहां पर है? डी में है, डी इज द राइट आंसर। Which reaction takes place during extraction of aluminum from aluminum oxide using carbon electrodes? बेटा ये एनोड पे होता है, ये कैथोड, ये इक्वेशन गलत हो गई है, ये ठीक है बिकॉज occurs at एनोड, ये भी ठीक है बिकॉज occurs at एनोड, एनोड dissolve itself, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसलिए भी गलत है क्योंकि एल्यूमिनियम के 50 3+ होता है, तो 33 का आंसर बी होगा बेटा, सही है। 34, which statement about gases in the atmosphere is correct? Carbon monoxide is pollutant which causes acid rain. Wrong, carbon monoxide acid rain cause नहीं करता। गलत हो गया, catalytic converter reduces carbon monoxide to carbon dioxide, reduces नहीं, oxidizes, इसलिए ये भी गलत। मीथेन इज इन द एटमॉस्फेयर डिप्लीट्स ओजोन लेयर, ये भी गलत बिकॉज डिप्लीशन जो है वो CFCs करते हैं, मीथेन नहीं करता, तो राइट आंसर इज डी। हाउ मेनी मोल्स of hydrogen chloride are formed when 1 mole of methane reacts with a large excess of chlorine in the sunlight? That's what we have done in the class. आप जानते हैं 4 moles of HCl बनते हैं हमेशा, अगर आपको वो सारे के सारे रिएक्शंस मालूम है। पहले क्लोरोमीथेन एंड HCl, फिर डाइक्लोरोमीथेन एंड HCl, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन एंड HCl, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन एंड HCl, तो टोटल HCl कितने मिले टेट्राक्लोरोमीथेन तक आपको 4, तो 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद कंपाउंड X इज शोन इन द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, ठीक है, इसमें टोटल कार्बन एटम कितने हैं 3। स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड X इज करेक्ट, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रॉन्ग, इसलिए क्योंकि इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो सैचुरेटेड तो नहीं हुआ, सही है। इट इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। रॉन्ग, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, ब्यूटीन 4 कार्बन एटम्स होते हैं। इट विल डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, दैट्स राइट बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा, ये ब्रोमीन को डिक्लोराइज कर देगा। इट्स नेम इज प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं लेकिन प्रोपेन में एल्कीन नहीं होता, डबल बॉन्ड नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर इज सी। Question 37, which statement about alcohols are correct? All alcohols contain the hydroxide ions. Wrong, hydroxide ions alkali में होते हैं, alcohol में नहीं होते, right? Ethanol can be formed from ethene by using a reaction catalyzed by yeast. Yeast ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल होता है और फिर इथेनॉल बनता है, तो इथेनॉल अगर इथीन से बन रहा है तो यीस्ट नहीं होगा, स्टीम इस्तेमाल होगा, स्टीम इज यूज, ये भी गलत हो गया। मिथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनोइक एसिड, दैट्स राइट। अल्कोहल X and Y आर shown are isomers। बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10O
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका देख लीजिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आप नोट करें इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो ये ठीक है। 3 and 4, I mean D is going to be the right answer. Question 38, an ester has the formula which pair of compound would react together to form an ester. मैं इस एस्टर का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप जरा देखिएगा। CH3 CH2 COO CH2 CH3। मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि जो पहला पोर्शन होता है वो एसिड का होता है और जो सेकंड पोर्शन होता है स्ट्रक्चर में वो अल्कोहल का होता है। इसका मतलब ये एसिड का पोर्शन है तो 3 कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, प्रोपेनिक एसिड। सही है। और 2 कार्बन का अल्कोहल क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो प्रोपेनिक एसिड और इथेनॉल कहाँ लिखे हुए, बी में लिखे हैं, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Which statement about polymers is correct? Nylon and terylene are both polyester. Wrong. नायलॉन में अमाइड लिंकेज होता है, टेरिलिन में एस्टर लिंकेज होता है, इसलिए गलत हो गया। प्रोटीन एंड नायलॉन है द सेम मोनोमर यूनिट्स। सेम मोनोमर यूनिट्स तो नहीं होते, इसलिए क्योंकि प्रोटीन इज फॉर्म थ्रू अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स जो हैं, और नायलॉन इज फॉर्म थ्रू डायमाइन एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज रॉन्ग। राइट, तो आपको बहुत अच्छे से नोट्स याद होने चाहिए। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं और नायलॉन जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। एंड डायमीन्स तो सेम मोनोमर यूनिट तो नहीं हुआ। प्रोटीन्स आर द सेम अमाइड लिंकेज एज नायलॉन, दैट्स राइट। ठीक है। टेलिनीन एंड फैट्स आर एस्टर्स बट विद डिफरेंट लिंकेजेस। जब एस्टर्स है तो लिंकेज तो सेम, डिफरेंट नहीं होगा, लिंकेज तो सेम हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। Question number 40, X is a polymer and X is hydrolyzed, one of the product is substance Y. What type of polymer is X? आप नोट करें इसमें अमाइनो ग्रुप भी है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, इसका मतलब this monomer is an amino acid. If this monomer is an amino acid, इसका मतलब जो पॉलीमर था वो प्रोटीन था, एंड प्रोटीन इज बेसिकली अ कंडेंसेशन पॉलीमर। राइट आंसर इज सी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। It is an amino acid. So protein could be the polymer. ठीक है। Thank you very much, guys.